اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی، چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے، اور تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خداوند کی مانند بنے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 90۔ پہلا تھسلنیکیوں، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ پہلا تھسلنیکیوں پہلا باب تا 5 باب۔ یہ پولس کا خط کا تسلسل ہے۔ پولس مختلف کلیسیاں اور ایمانداروں میں یسوع مسیح پر مرکوز ایمان پیدا کر رہا ہے جو ہر ایک مختلف صورتحال اور حالات میں ہیں۔ خاص طور پر تھسلنیکیوں کی کتاب ان اراکین کے لیے خداوند کی دوسری آمد کی امید کے بارے میں بتاتی ہے جو اس دنیا میں ایمان کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے۔ پہلے پولس نے ان ایمانداروں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جنہوں نے مصیبت کے باوجود بھی اپنا ایمان برقرار رکھا، یہ کہہ کر ارکان کے ایمان اور وفادار زندگی کے بارے میں بات کی۔ تم سب کے بارے میں ہم خداوند کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ اور اے بھائیو، خدا کے پیارو، ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو، یہاں تک کہ مقدونیہ اور اخیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بنے، کیونکہ تمہارے ہاتھ سے نہ فقط مقدونیہ اور اخیا میں خدا کے کلام کا چرچا پھیلا ہے بلکہ تمہارا ایمان جو خدا پر ہے ہر جگہ ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ ہمارے کہنے کی کچھ حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ پولس انہیں اے بھائیو خدا کے پیارو بلا رہا تھا۔ ہم آدمیوں سے عزت نہیں چاہتے تھے۔ پولس نے تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے ارکان کو بتایا کہ اسے فلپیوں میں تکلیف اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن خدا کی مدد سے سخت مخالفت کے باوجود ان کو خوشخبری سنانے کی ہمت کی، اور کہا جاتا ہے کہ پولس اور اس کے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سونپی گئی تھی کہ وہ آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرے جو ہمارے دلوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پولس نے کہا، ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے ہیں، نہ تم سے، نہ اوروں سے۔ پولس ان کے لیے ترس رہا تھا اور انہیں نہ صرف خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان بھی دینے پر خوش تھا، کیونکہ پولس تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے ارکان سے پیار کرتا تھا۔ ایک بار پھر پولس کے تمام خطوط میں، پوری بائبل میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ارکان کے مابین محبت اور رفاقت خدا کے ذریعے ہونی چاہیے۔ تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے ارکان سے پولس کی محبت خدا کی وجہ سے تھی، چونکہ پولس خدا سے پیار کرتا تھا اور خدا ان سے پیار کرتا تھا۔ پولس خدا کے ذریعے ان سے محبت کرتا تھا۔ یہ یسوع مسیح میں یسوع مسیح کے ذریعے محبت تھی۔ خدا کا کلام تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر کرتا ہے۔ پولس ایک ہمدرد مشنری تھا۔ اس نے دن رات کام کر کے خوشخبری کی منادی کی۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے نہیں بلکہ خدا کے حضور وقف کیا۔ اس نے حوصلہ افزائی کی، تسلی دی اور ہمت بندھائی، جیسے ایک باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا۔ صرف خدا کے لائق زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ پولس کی سخت محنت کی وجہ سے تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے ارکان نے پولس کے ساتھیوں سے خدا کا کلام قبول کیا، آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ خدا کا کلام جان کر، اور وہ ان میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے۔ دوسری کلیسیاؤں نے یہودیوں سے جن چیزوں کا سامنا کیا وہ تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے ارکان کو بھی سہنا پڑا۔ یہودی وہی تھے جنہوں نے خداوند یسوع کو اور نبیوں کو بھی مار ڈالا، پولس کے ساتھیوں کو نکال باہر کیا، خدا کو ناپسند کیا، سب آدمیوں کے مخالف تھے۔ پولس کے ساتھیوں کو غیر قوموں میں انجیل کو پھیلانے سے روکتے تھے۔ یہ اس وقت پر خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی مصیبت ہے، تاہم اگر خدا کا کلام خدا کے لوگوں میں تاثیر کرتا ہے تو ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے۔
جب थिस्सलुनीकियों की कलीसिया मुसीबत सह रही थी तो पौलुस ने मसीह की खुशखबरी फैलाने में खुदा के खादिम तीमुथियुस को उनके ईमान में उनकी मजबूती और हौसला अफजाई के लिए भेजा, ताकि उन्हें तसल्ली मिले और उन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए। उन्हें पेश आने वाली मुसीबतों की बात पौलुस की तरफ से जब वो उनके साथ था पहले ही की जा चुकी थी। पौलुस ने तीमुथियुस को उनके पास भेजा क्योंकि वो उनकी सूरत हाल के बारे में फिक्रमंद था, लेकिन तीमुथियुस वापस आया और उनके ईमान और मोहब्बत की खुशखबरी सुनाई। और पौलुस ने कहा कि वो मुतमईन हुआ जब उन्होंने ये कहा कि वो हमेशा पौलुस और उसके साथियों से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो भी उन्हें देखने के ख्वाहिशमंद हैं। पौलुस के लिए जो उनकी ऐसे देखभाल करता था जैसे एक बाप अपने बच्चों की देखभाल करता। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अरकान का जो उसके बच्चों की तरह थे, ईमान की मजबूत जिंदगी बसर करना और खुदावंद पर साबित कदम रहना सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान है। खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। खुदा के लोग होने का मतलब खुदा से ताल्लुक़ रखना है। माजी में उन्होंने उन लोगों की तकलीद की जो हवा की अमलदारी के हाकिम थे, लेकिन खुदा की अजीम मोहब्बत और फजल के जरिए वो खुदा के पैरोकार बन गए। वो खुदा के हैं, वो खुदा के लोग बने और वो खुदा के फर्जंद बन गए। लिहाजा खुदा के लोगों को अपने बादशाह खुदा की मर्जी को जानना चाहिए और खुदा के फर्जंदों को अपने बाप खुदा की मर्जी को जानना चाहिए। बहस करना या अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। इसीलिए पौलुस ने कहा, गर्ज ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। इसके फौरन बाद पौलुस ने कहा, खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, न शहवत के जोश से उन कौमों की माने जो खुदा को नहीं जानती, और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि ये वही था जो खुदा ने पुराने अहदनामे में बार बार कहा था, मैं खुदावंद और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं, इसलिए तुम मुकद्दस होना क्योंकि मैं कदूस हूँ। इसीलिए पौलुस ने एक बार फिर कहा, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। खुदा की मर्जी पाक है। खुदा के लोग जिंदगी के उस तकद्दुस को खुदा के कलाम के साथ बरकरार रख सकते हैं। यही वजह है कि बाइबल बयान करती है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। और इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। और खुदा के लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा के कलाम के जरिए तकदीस पा चुके हैं, अपने भाइयों और पड़ोसियों से मोहब्बत करके अपने आप को खुदा के लोगों के तौर पर जाहिर करते हैं। इसीलिए पौलुस ने यह भी कहा, मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो। बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। पौलुस ने खुदावंद की दूसरी आमद और मुकद्दसों के जी उठने का खुलासा इस तरह किया है। खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अरकान से जो मुसीबत सह रहे थे कहता है, खुदावंद की दूसरी आमद के मुंतज़िर रहते हुए एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। लेकिन अहम बात यीशु मसीह की दूसरी आमद के औकात और मौके हैं। पौलुस ने कहा, मगर ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें। लिहाजा जब यीशु के शागिर्दों ने पूछा, हमको बता के ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा? यीशु ने जवाब दिया, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और उसने जोर देकर कहा, बस
जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा, और इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हमें हर दिन उस दिल से बेदार रहना चाहिए कि आज का दिन जो हमें दिया गया है आखिरी दिन है, और हमें हर रोज खुदावंद की दूसरी आमद की तैयारी में रहना चाहिए। कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि आपस में हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो। खुदावंद ने अपने लोगों को बुलाया और हमें मुकर्रर किया ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल कर सकें, क्योंकि यीशु मसीह हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। बस खुदा के लोग एक दूसरे को तसल्ली दे और एक दूसरे की तरक्की का बायस बने और आपस में मेल मिलाप रखें। निज पौलुस ने कहा, और ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सब के साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सब से। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा के लोगों के लिए खुदा की मर्जी ये है कि वो खुदा के साथ चलें। बाइबल बताती है, और खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। खुदा ने कहा, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सोखनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। खुदा की मर्जी हमारे अमाल से कोई कामयाबी हासिल करने के लिए नहीं है, ये खुदा को जानना, खुदा की मर्जी को जानना और खुदा के साथ चलना है और खुदा के साथ चलते हुए खुश होना है। लिहाजा बाइबल बताती है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहे और तवीलों में मोशी ना रहे, तो भी मैं खुदावंद से खुश हूँगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। इसीलिए पौलुस ने भी कहा, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। ये खुदा में खुश होना, खुदा के जरिए खुदा के साथ चलना और खुदा का शुक्र अदा करना था। और पौलुस ने मजीद कहा, रूह को ना बजाओ, नबूतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। थेसलोनिकियों की कलीसिया के कारकुनों को जो मुसीबत सह रहे थे, पौलुस ने कहा कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जरूर आएगा, हालांकि हमें नहीं मालूम कि कब। लिहाजा वो उन लोगों की तरह जो खुदावंद की दूसरी आमद पर यकीन रखते और खुशी मनाते और खुदा के वसीला शुक्रिया अदा करते हैं, एक दूसरे को तसल्ली दें, यहाँ तक कि अगर ये दुनिया की तरफ से दी गई खुशी नहीं है। बाइबल यही कहानी सुनाती है, इस दुनिया की चीजों की मलकियत रखने और लुत्फ उठाने की नहीं, बल्कि खुदा के लोग बनकर खुदा के जरिए खुशी मनाने और खुदा के लोगों की तरह एक पाक जिंदगी के लिए कलाम हयात पर कायम रहने की कहानी और खुदा के लोग बनने और हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले खुदा के फर्जंदों की हैसियत से जिंदा रहने की कहानी जारी है।